Jacob. हम याकूब के जीवन के ऊपर देखेंगे Now, and we're going to learn some lessons for our life. और हमारे जीवन के लिए उनमें से कुछ अध्ययन को पढ़ेंगे। Now, in the book of Romans, Paul says, रोमियो किताब में पौल कहता है, he says that before Jacob and Esau were born, God said, Jacob have I loved, Esau have I hated. और हम देखते हैं कि याकूब और एसाव का जन्म होने के पहले परमेश्वर कहता है कि याकूब को मैंने प्यार किया है। This is before any of them, the brothers, had done anything at all. हम देखते हैं कि ये तब की बात थी कि भाइयों के बीच में कुछ गड़बड़ नहीं था। And Paul says, somebody may object and say, how can God love one and hate the other before they have done anything? और हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा कह सकता है कि मैं एक को द्वेष करूंगा और एक से प्यार करूंगा, जबकि तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। But you see, God knows everything. आपको पता है परमेश्वर को सब कुछ पता है। That means that in advance He knows what they're going to do. हम देखते हैं कि पहले से ही वो जानता है वो क्या करने वाला है। And God, simply by being God and knowing everything, knows this. और हम देखते हैं कि परमेश्वर होने के कारण वो सब कुछ जानता है और हमें भी जानता है। And the book of Romans says that what God foreknew, He predestined. That means He knows in advance, so then He makes that our destiny. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कुछ हमारे बारे में सोचा है वो पूरा करता है। And you understand how that does not take your choice away. और हम देखते हैं कि हम कुछ चुनौती ना करें, हम कौन सा मार्ग चुनने का। You still have your choice. फिर भी परमेश्वर आपको चुनौती देता है। God just knew in advance what you were going to choose. और परमेश्वर को पहले से ही पता था कि तुम क्या चुनने वाले हैं। So that is Jacob, the big difference between Jacob and Esau. और याकूब और ईसाऊ के बीच में जो अंतर है, Jacob is not always a nice man. याकूब ये हमेशा अच्छा व्यक्ति है कि ऐसा नहीं है। But Jacob cares about spiritual things. मगर याकूब आत्मिक बातों के बारे में चिंता करता है। And Esau is not really concerned about that. और हम देखते हैं कि ईसाऊ उतना आत्मिक नहीं था। And that happens today too. आज भी वैसे ही चल रहा है। Here in this city, you have people who may struggle with their spiritual life, but they still care about God. और हम देखते हैं कि लोग इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मिक बनते हैं। And you have other people who don't really concern themselves with spiritual things. और आप देखते हैं कि और कई लोग ऐसे हैं जो आत्मिक बातों को इतना नहीं मानते हैं। When Jacob wanted the birthright that Esau had, और हम देखते हैं कि ईसाऊ को जो जन्म हक सिद्धि था वो जब याकूब को चाहिए था। and Esau came back from hunting and not getting anything. और हम देखते हैं ईसाऊ जंगल में पूरा जानवरों को मारकर आने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता है। He was very hungry. और उसे बहुत भूख लगा था। And Esau was cooking some dal, lentil stew. Okay. और ईसाऊ दाल बना रहा था। And Esau said, "Let me have some. I'm starving." और तभी ईसाऊ ने बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा दो। And Jacob says, "You cannot have any. Doesn't it smell nice?" बोला कि ये इसको हाथ में लगाना है, तेरा नहीं है। Take a nice sniff. Oh, it's तभी ईसाऊ को इतना भूख लगा था कि वो बात सुन रहा था। But you can't have any मगर तुझे कुछ नहीं मिलेगा unless you give me your birthright. जब तक तेरा जन्म हक का जो अधिकार है न देगा मुझे। Now, what is a birthright? और जन्म हक क्या है? The eldest child gets twice as much of the inheritance as any of the other kids get. और हम देखते हैं कि जो स्टेट का जो कुछ प्रॉपर्टी है उसका दुगना हिस्सा बड़े वाले को मिलता है। So if you have only 2 sons, अगर आपके पास सिर्फ 2 ही बेटे हैं, the oldest one is going to get 2/3 of the total. और हम देखते हैं कि बड़ा वाला को 2/3 भाग मिलता है। Now, if you have 12 sons, अगर आपके पास 12, it just means that the oldest one will get double that each of the others gets. और हम देखते हैं कि दूसरा बचे हुए 11 से भी उसको डबल मिलता जाएगा बड़े वाला को। So if you had 12 sons, you would divide by 13 and give the oldest one 2 pieces. और हम देखते हैं कि अगर आपके पास 12 बेटा है तो आप 13 से उसे गुना करके भागा करके
डबल 2 हिस्सा उसको देगा, बड़े वाला को। Now, Esau says, if I'm all going to die of hunger, what good is my birthright? वो कहता है कि मैं अगर भूखे के कारण मर जाऊं तो मेरा जो जन्म हक का अधिकार मैं कैसा दे सकता हूँ? Isaac was a wealthy man. और इसहाक बहुत श्रीमंत था, धनवान था। 2/3 of Isaac's wealth is a lot. और हम देखते हैं कि 2/3 भाग जो इसहाक का था वो बहुत है। And Esau gave it all away for a bowl of soup. और हम देखते इसहाक For a bowl of food, Esau gave all of that away. और हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा कटोरा जो खाना है उसके लिए, वो सूप के लिए उसने अपना जन्म हक अधिकार दे दिया। And you might say, Jacob is really unkind to require that simply to give him a bowl of food. और हम देखते हैं कि आप लोग ये सोचते हैं नाइंसाफी है कि जेकब ने, याकूब ने ईसाऊ से वो जन्म का अधिकार लिया है। But the Bible blames Esau. मगर बाइबल ईसा को दोषी ठहराता है। It says Esau did this way, Esau despised his birthright. और इस तरह से ईसा अपने जन्म हक अधिकार को गंवाता है। Okay. Now many years go by. बहुत साल पहले, and Isaac is very old. ईसा बहुत बुढ़ा हो चुका He है is blind. और अंधा हुआ He है is bedfast. और बिछाना पर है। And he knows he may die soon. He's not sure. और उसे पता था कि वो जल्दी मरने वाला है, So, कब पता नहीं। as it turned out, he lived a long time more. और हम देखते हैं कि वो बहुत साल जिया है, But he did not know that. मगर उसको पता नहीं था। So he thought he's going to die soon. और उसको लगा कि वो बहुत जल्दी So मर he जाएगा। said, before I die, I will give my blessing to Esau. और उसने कहा कि मैं मरने के पहले मेरे आशीष ईसाऊ को दूंगा। Now, what is the blessing? और वो आशीष क्या है? Usually there is a favored son, usually the oldest. और हम देखते हैं कि जो बड़ा बेटा रहता है घर में, उसके ऊपर कृपा दृष्टि होती है। And God had told Abraham, that you will be blessed, and you will be a blessing. और बाद में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू आशीषित होगा और तेरे कारण सब लोग तुझ में आशीष पाएंगे। Even though Ishmael was Abraham's oldest son, God said Isaac will be the son of promise and will get the blessing. और हम देखते हैं कि इश्माइल भी अब्राहम का संतान है, मगर परमेश्वर ने कहा इसहाक वचनबद्ध का लड़का है और उसे तुझे सम्मान करना है। Then when Isaac's wife Rebekah was pregnant with these twins, और जब इसहाक की पत्नी रेबेका गर्भवती हुई ये 2 बेटों के साथ, there was a lot of movement in her womb. और उसके गर्भ में बहुत हलचल था। And she prayed and asked God, what's going on? तब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से पूछा कि ये क्या हो रहा है? And God said, inside you are 2 nations. उस परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे गर्भ में 2 राष्ट्र हैं। He said, 2 nations, that's a lot of people. और पत्नी रेबेका ने कहा कि 2 राष्ट्र, ये तो बहुत हो गया। 2 boys who will be the father of nations. 2 लड़के जो राष्ट्रों का पिता होगा। Okay. Now, and God told Rebekah, the older will serve the younger. और परमेश्वर ने रेबेका से कहा कि बड़ा वाला छोटे का देखरेख करेगा। So Rebekah remembers that. और रेबेका को ये बात याद थी। And now Isaac is going to give the blessing to Esau. अभी ईसा को आशीषित करने वाला है। Now Isaac is an outdoorsman. He likes to be out in the fields and out in the woods. He is an outdoors person. और हम देखते हैं कि ईसा बाहर वाला व्यक्ति है, बाहर के बातों में ध्यान देता है, बाहर के बातें देखता है। He's an excellent, prosperous farmer. और हम देखते हैं कि वो एकदम उत्तम उन्नति पाने वाला व्यक्ति था। And Esau is also an outdoors person. और हम देखते हैं कि ईसा भी बाहर के कामकाज देखने He वाला व्यक्ति doesn't था। like to sit around the house. वो घर में कभी नहीं रहता था। So Isaac feels a kinship with Esau because they are the same in this way. और इसहाक और ईसाऊ का गुण धर्म मिलता जुलता था। Okay. So it is his favorite son. He wants to give the blessing to him. और हम देखते हैं कि उनका
इच्छा था कि दोनों पर भी परमेश्वर का आशीष मिले। But Jacob is a homeboy. जेकब वो लड़का था, ऐसा लड़का था कि वो बाहर के कामकाज में इच्छा नहीं था, वो घर के बारे में देखता था। He's a mama's boy. वो एक माँ का बेटा था। He likes to stay at home. वो घर में ही रहना चाहता था। And he is his mother's favorite. और उसके माता का फेवरेट लड़का था वो। Now you are parents. You know you should not have a favorite child. और आप लोग माता पिता है और आपको मालूम है कि आपको कोई ऐसा फेवरेट बच्चा नहीं होना चाहिए। And you should love your children equally. और दोनों बच्चों जितने भी संतान है सबको समानता से प्रेम करें। At least Rebecca has a better reason than Isaac has. और हम देखते हैं कि रिबेका के पास कारण था। And that reason is the promise of God before the children were born. और हम देखते हैं कि वो वाग्दान जो वचन परमेश्वर ने दिया है याकूब और ईसाऊ के जन्म के पहले। So anyway, she helps Jacob to get the blessing rather than Esau. You know the story. और आपको ये कहानी पता है कि रिबेका याकूब को आशीष मिलने के लिए सहायता And करती है। Esau is very angry. और ईसाऊ बहुत क्रोधित होता And है he wants to kill his brother Jacob. और वो याकूब उसका भाई को वो मार डालना चाहता था। So Rebecca persuades Isaac to allow Jacob to escape. और तभी रिबेका इसहाक को कहकर याकूब को बचाने के लिए उसे छुपाती है। So Jacob gets away. और याकूब चला जाता है। As he is leaving, और जैसे वो जाता है, of course, he cannot go by air or by train or by bus. There was no such thing. अब उन दिनों में प्लेन, बस या ट्रेन नहीं था। So he's walking. और उन दिनों में सिर्फ पैदल जाना And था। as he goes, he sleeps one night and gets this dream. और एक रात जब वो प्रवास यात्रा कर रहा था, तभी थक कर वो सो जाता है, तब उसके एक सपना And गिरता the है। dream is very significant. The और dream is वो जो important. सपना देखा, Because you see, where he was going was the place where they had these big temples with stairways up at the front. और हम देखते हैं कि वो जो स्थान पर जा रहा था, वहाँ पर बड़े-बड़े मंदिर हैं। Okay, and the priest would go up the steep stairway to the temple on the top. और जो मंदिर के पास जाने का रास्ता ऐसा स्लोप रहता था और नीचे से याजक जाता था ऊपर। And he would perform sacrifices. और वो ऊपर जाकर बलिदान चढ़ाता था। And these were people who worship many gods. और ये ऐसे लोग थे जो बहुत देवताओं की आराधना करने वाले। He would come down and then he would tell the people, the gods said this. और वो तभी मंदिर में से नीचे आता था, तभी लोगों से बातचीत करते कि परमेश्वर ने यह कहा है। Jacob is leaving Canaan. जेकब कनान देश छोड़कर जा रहा है। And he has a dream of the stairway, but with angels going up and down. और हम देखते हैं कि जैसे वो मंदिर को ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, वैसा वो दर्शन में देखता है, स्वप्न में देखता है कि देवदूत ऊपर से नीचे चलता फिरता है। When he wakes up, और वो उठता है, he says, "Truly, this is the house of God." तब याकूब उठकर कहता है, सचमुच यही परमेश्वर का घर है। And the name in Hebrew, house of God, और परमेश्वर का घर हिब्रू में इसका मतलब is Bethel. उसका मतलब है बेथेल। So that is how that place got that name. और इस तरह से उस स्थान को ये नाम मिला। And the stone, which was his pillow, he put it upright and put oil on it to anoint it as a sacred place. और तभी उन्होंने उस स्थान में पत्थर रखकर तेल डालकर अभिषेक करके कहा कि ये परमेश्वर का स्थान है। He's trying to mark the place so that when he comes back, he can find it again. वो इसीलिए वहाँ पर चिन्ह बना के रखता है कि जब ये वापस लौटेगा वो देख सके। And the ancient people, many times, they marked a location this way by putting a big pile of rocks there. और हम देखते हैं कि जुना जमाने में लोग उनके चिन्ह को ऐसे पत्थरों का ढेर जमा करके बनाते थे। So now, then he says, तब वो कहता है, he says, if God will be with me and watch over me, अगर परमेश्वर मेरे साथ है और मुझ पर निगरानी रखे, if he will give me food and clothes, अगर वो मुझे भोजन और कपड़े देगा, and he will let me come safely back here again, फिर से मुझे सुरक्षित यहाँ पर भेजेगा, okay, then
this stone will be God's house, और ये जो पत्थर का निशाना बना है परमेश्वर का भवन होगा, and whatever God gives me, I will give you back 1/10. और वो कहता है कि परमेश्वर जो कुछ मुझे देगा उसका 10वां भाग मैं प्रभु को दूंगा। That's a pretty good deal, right? और ये अच्छा उसने समझौता किया है। God does all those things for you, और परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ करता है, and all you get, you only give 1/10 back. और उसके कारण आपको जो मिलता है उसमें से आप 1/10वां भाग देने को कोई हरकत नहीं है। There are actors and actresses who will go to Bollywood or Hollywood. और हम देखते हैं बहुत सारे अभिनेत्री लोग हैं जो जाते हैं और बॉलीवुड हॉलीवुड में And they will काम करते हैं, sign contract with agent. और जो उनका एजेंट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, You make me a star. तुम मुझे स्टार बना, 1/10 of my contract is your fee. और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का 10वां भाग है वो तुम्हारा फीस होगा। There are people who have property. और लोगों के पास, कुछ लोग ऐसे And they have प्रॉपर्टी है a manager for their property. और उनके प्रॉपर्टी के लिए मैनेजर को रखते And हैं, the manager collects the rent, और वो मैनेजर उनसे पैसा लेता है, and he takes care to make sure that if there is any emergency repair, that the repair will be taken care of. अगर वो देखेगा कि उनके प्रॉपर्टी में कहीं पर रिपेयर करना है तो फटाफट कर लेता है, And the manager gets 10% of the rent. और हम देखते हैं कि मैनेजर को उनका प्रॉपर्टी में का जो कमाई है उसका 10वां भाग वो मैनेजर को देते Maybe हैं। here it's different, but where I am come in contact, those are the percentages, the same percentage. और हम देखते हैं कि ये सब बातें मैंने सुना है, वही बातें यहाँ पर उल्लेख है, And nobody complains about that. और इसके बारे में कोई शिकायत करता नहीं है, They expect to pay that fee. और वे उन्हें देना चाहते हैं। Okay? But here, God gives us life and gives us ability to do so many things. और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर है जो तुमको और मुझको जीवन देता है। But then, if it says we will pay our tithe, we say, "Oh, I cannot pay my tithe." तब परमेश्वर जब आपको कहता है कि अपना दशांश देना है, तो तुम कहते हैं कि नहीं, मैं तो दशांश देने पाऊंगा। We're willing to pay everybody else that percentage, but not God. Okay. दूसरों को देंगे, उनका जो कुछ पैसा है वो देंगे, मगर परमेश्वर का 10वां भाग परमेश्वर को नहीं देंगे। That doesn't make sense. और एक प्रकार का सोचने वाली बात है। God does these things for us, and God is far more worthy than the other people are. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में कितना तो जवाबदारी लेता है, मगर हम उसके खातिर कुछ नहीं कर सकते। Now, this is the second example in the Bible of tithing. और हम देखते हैं कि ये दूसरा उदाहरण है बाइबल में कि दशांश के बारे The में। first one is Abraham पहला दशांश अब्राहम ने दिया है, from Genesis chapter 14. और जैसे कि हम पिछले टाइम सीखा है, उत्पत्ति 14 में 17 में लिखा है, The second one is Jacob from chapter 28. और वही उत्पत्ति 28 में हम देखते हैं कि दूसरा दशांश देने वाला याकूब था। Now Jacob goes on his way. अब याकूब उसके मार्ग में जाता And है, he comes to the place where he is expected to meet his relatives. और वहां पर उसके रिश्तेदारों को मिलने वाला था, And he sees the shepherds there with there is a well, but there is a big stone blocking the well. और हम देखते हैं कि वहां पर एक कुआं है और वो कुआं पर पूरा कुछ डाल के रखकर ब्लॉक किया है। And so he says to them, why they are waiting, and he says, why don't you water your flock? और वो कहता है कि उन चरवाहों से कहता है कि तेरे चरवाहे सब रुके हैं, तेरे सब बेड़े रुके हैं, उन्हें तो पानी क्यों नहीं पिलाता? And they said, we can't, because the stone is too big, and we wait until all the shepherds come, and then we can move the stone. वो कहता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, जब भी कोई चरवाहा लोग और आएंगे, हम सब मिलकर उस पत्थर को उठाएंगे। And then they say, and here is your Rachel is coming. और हम देखते हैं यहाँ पर रेचेल आ रही है। Now Rachel is the daughter of Laban. और हम देखते हैं कि रेचेल लाबान की बेटी है। And so when Jacob sees Rachel, जब याकूब रेचेल को देखता है, oh, he's बहुत सुंदर लड़की है. बहुत सुंदर लड़की है। Okay, and so suddenly he feels like a great muscle man.
और एकदम से वो उसका सभी बदलाव आ जाता है उसके अंदर। When he sees Rachel, he goes, "Bruh." रिचल आया तो ऐसा नाटक कर रहा है वो। And he says, "I will move that rock." तब उस रिचल के सामने जाकर कहता है कि ये पत्थर को मैं हटाऊंगा। The doctors will tell you there is a chemical in your body, adrenaline. Okay. So there is a chemical in your body, adrenaline. You get excited and you can do more than you physically normally can do. उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर में इतना केमिकल है कि तुम जरूरत से ज्यादा काम कर सकते हो। And when he sees her, he goes, "Ooh yeah," and start pumping. And he moves that rock. और वो उसको रिचल को देखने के बाद और ये हो जाता है और उस पत्थर को उठाता है। Yeah, so that Rachel can say, "Ooh, big shot, big muscle." तभी रिचल कह सकते क्या मसल्स है इसका। So then and he sees her and he gets action very quickly. और तभी हम देखते हैं वो तुरंत काम पर लग जाता है, एक्शन लेता है। He kisses her and he begins to cry. Okay. और वो उसे गले लगाता है, रोता है क्या है। And she runs and tells her father, "Jacob is here. Ooh, he's hot." Okay. और बाद में वो अपने पिता का पास जाती है रिचल और कहते हैं कि हाँ जेकब आया है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। So, now Laban is working there for some. Jacob begins to work for Laban. और याकूब लाबान के लिए नौकरी करता है। Now I knew a family in Nepal. मुझे नेपाल में एक परिवार पता है। An older brother started a school. और बड़ा भाई ने स्कूल शुरू किया। At the beginning, he did not have a lot of extra money. शुरू में उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। He had his younger sister working for him. और उसके साथ उसकी छोटी बहन उसके साथ जॉब कर रही थी। He was not paying her a salary. और वो उस बैंक के सैलरी देता नहीं था। She was getting food and shelter, but no salary. वो रहने के लिए मकान और खाना देता था मगर one time उनको तनख्वाह नहीं देता था। She came to me and told me that. और वो सिस्टर ने आकर मुझसे कहा। So she said, "How can I persuade my brother to pay me?" और मैं मेरे भाई से कैसे विनती करूँ कि तू मेरा तनख्वाह देना। I told him, show him this verse. और तब मैंने उस भाई से कहा कि ये वचन उसे बता। Chapter 29. 29 अध्याय verse 15. और 15वीं आयत। And Laban said, "Just because you are my relative, should you work for me for nothing? Tell me what your wages should be." तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण सुख के मुफ्त में सेवा करना मेरे लिए उचित नहीं है। Okay, so this brother, when she told her older brother this, he became very unhappy. जब ये बातें उस लड़की ने वचन बताया तो उन लोग बहुत शांत हो गए। Basically, he was cheating her, and so she was saying, "Hey, just because I'm your relative, that doesn't mean I should work for free." और बाद में उन्होंने कहा कि हम एक रिश्तेदार होने के नाते ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही काम करूं फुकट में। So Jacob says, तो इसलिए जेकब कहता है, he says, "I will work 7 years for you for Rachel." वो कहता है कि मैं तेरे लिए 7 साल काम करूंगा। Okay, so he agrees. और ये इस बात पर सहमत होता है। And then, फिर okay, and then the Bible says, फिर आगे बाइबल कहती है, it says, he worked 7 years for Rachel, but because he loved her so much, it seemed like only a few days. और उसने उसके लिए 7 साल काम किया करके बताया, मगर रेचल और याकूब के बीच में प्रेम होने के कारण थोड़े दिनों काम किया। Now, isn't that sweet? Very sweet. क्या ये अच्छा नहीं है? Everybody say, सब लोग कहते हैं हाँ। Because it is so sweet. Now comes the wedding day. अभी आता है विवाह का दिन। Remember, they have no electricity. और उन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। At night, it's dark. और रात के समय अंधेरा है। And so there is the tent. और वहाँ पर तो तंबू है। And they wear heavy veil. और वे बड़ा पर्दा डालते हैं। They go into the tent. और उस तंबू में जाते हैं। They can't see anything. वे कुछ भी नहीं देख पाते हैं। Next morning,
दूसरे दिन सुबह when the daylight comes, जब ये दिन का सूरज का उजाला आता है, then he sees her face. तब वो उसका चेहरा देखता है। And it's not Rachel, it's Leah, the older sister. और हम देखते कि वो रेचल नहीं थी, बल्कि रेचल की बड़ी बहन लिहा थी। Jacob says to the father, "What did you do? You tricked me." और तभी याकूब उसके पिता से कहते हैं, तूने ये क्या किया? तूने मुझे फंसाया है। This is Jacob who has already tricked Esau twice. और ये तो याकूब है जो